Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4 by Galaxy Publication. And here is a book, Science for Everyone. So, children, today we are going to start with chapter number 4 and the name is Animals Living and Surviving. Before starting this chapter, let's start with Let's Begin exercise. So, here you can see given below are names of 3 animals and pictures of 3 natural surroundings. तो यहाँ पे आपको देख सकता है कि यहाँ पे 3 animals की पिक्चर बनी हुई है और नीचे 3 surroundings की जहाँ पे ये animals रहते हैं. So what you have to do, you have to match the animals to the places where they are usually found. So आपको क्या करना है, इन animals को उनकी जगहों से मैच करना जहाँ पे ये पाए जाते हैं. So here you can see the first picture of cow. Cow कहाँ पे पाई जाती है? She is found on plains. Next comes monkey. Monkey is found on trees. And the last is fish. Fish is found in water. So these are the natural habitat of these animals. Now let's quickly start the chapter. So children, there are many different places on earth. Earth पे बहुत सारी अलग-अलग जगहें हैं. They are ice cold regions, green plains, deserts and oceans. तो ये कौन कौन सी जगह हैं? ये हैं ice cold regions, means ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हो. Green plains, प्लेन एरिया हो सकती है जहाँ पे ग्रीनरी होती है. नेक्स्ट कम्स डेजर्ट्स, जहाँ पे जो है आपने देखा होगा रेगिस्तान को हम डेजर्ट कहते हैं. सो एंड द लास्ट इज ओशियंस, मीन्स फुल ऑफ वाटर. So different living organisms can be found in these different places. So यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अलग अलग organisms हैं ये इन सब अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं. But sometimes the environment becomes so harsh that chances of an organism to survive becomes very difficult. लेकिन क्या होता है, कई बार जो सिचुएशन है या जो एनवायरनमेंट है या जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा हार्श हो जाता है, इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है आसानी से नहीं रह पाते हैं वहाँ पे. इन सच केसेस, अब ऐसे केसेस में क्या होता है, in order to survive an organism adapts or changes itself according to its surroundings. So ऐसे केस में क्या होता है, जो एनिमल हैं वो अपने जो भी उनका जो है प्लेस है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वहाँ के चेंजेस को अडेप्ट करते हैं और अपनी बॉडी को उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढालते हैं. दिस इज नोन एज अडेप्टेशन और इसे ही अडेप्टेशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंगुइन कैन सर्वाइव इन वेरी कोल्ड रीजन. पेंगुइन जो है बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाकों में ही पाई जाती है. वाइल अ क्रोकोडाइल इज अडेप्टेड टू लिव इन स्वैम्पी एरियाज. लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो स्वैम्पी एरियाज में पाया जाता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अडेप्टेशन टू हैबिटेट. सो हैबिटेट प्रोवाइड एनिमल्स with food, shelter and water. So habitat क्या करता है, animals को food, खाना, shelter means रहने की जगह और water, ये तीनों चीज़ें provide करता है. Our earth has a variety of habitats. और हमारा जो earth है इसमें बहुत सारे habitats आपको मिलेंगे. Different animals live in different habitats. अलग अलग animals अलग अलग habitats में रहते हैं. Based on their habitats, animals can be divided into terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. So ये जो animals हैं इन्हें divide किया गया अलग अलग कैटेगरी में based on their habitat, इनके habitat के according. So इन्हें जो है terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal और aerial animals में divide किया गया है. अब क्या होते हैं ये सारे? Let's read. So children, here first we are going to read about terrestrial animals. So animals that live on land are called terrestrial animals. ऐसे animals जो land पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, ऐसे animals को हम terrestrial animals कहते हैं. Like elephants, dogs, lions, camels and many more. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे animals हैं.
Most land animals have legs to move and lungs to breathe. ज़्यादातर जो लैंड एनिमल्स हैं आप देखेंगे इनके पास क्या होते हैं, लेग होते हैं मूव करने के लिए और लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए. बट स्नेक डज नॉट हैव लेग्स. लेकिन जो स्नेक है उसके पास लेग नहीं होते हैं. वो क्या करता है, इट स्लिथर्स टू मूव. वो क्या करता है, स्लिथर करता है, वो घिसट के चलता है और तब वो मूव करता है. लैंड एनिमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. ये जितने भी लैंड एनिमल्स हैं इनके पास जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है. एंड सेंस ऑर्गन्स टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. और इनके सेंस ऑर्गन भी बहुत अच्छे से डेवलप हैं जिसकी वजह से ये अपने आसपास के सराउंडिंग को इजीली सेंस कर पाते हैं, कहीं खतरा तो नहीं है. हाउएवर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन क्या होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर जगह सेम नहीं होती. In some places it is very hot such as deserts, while in some places it is very cold like the polar region. So हर जगह पे जो है सिचुएशन एक जैसी नहीं, हर जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं है. कई जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ प्लेसेस है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे कि पोलर रीजन्स इन आर्टिक एरिया में. Thus adaptation always vary according to the climatic conditions of the place. इसीलिए जो adaptation है वो जो है change होता रहता है climatic condition के according. place की जो climatic condition है उसके according ये change होता रहता है. Animals that live in hot deserts have thick skin and fur on their body to protect them from the heat of the sun. So ये जो एनिमल्स हैं जो हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है और इनकी बॉडी पे जो फर है वो भी होता है जो कि क्या करता है, उन्हें जो है हीट से, सूरज की जो गर्मी है उससे बचाता है. एनिमल्स लाइक कैमल्स हैव अ हम्प ऑन देयर बैक. और ये जो एनिमल है जैसे कि कैमल हो गए, इनके पीछे जो है एक हम्प मिलेगा एंड इट स्टोर्स फैट. और ये जो एरिया ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है. देयरफॉर दे कैन ट्रैवल फॉर डेज विदाउट ईटिंग एनीथिंग. सो इसलिए क्या होता है, ये जो एनिमल है जैसे कि कैमल, ये काफ़ी दिनों तक जो है चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है बिना कुछ खाए, क्योंकि ये जो फैट यहाँ पे स्टोर होता है इसको बॉडी फिर यूज़ करने लगती है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैमल, polar bear. Now let's see the meaning of slither. Slither means pass or move smoothly. ये बहुत ही ज़्यादा smoothly move करता है. कौन? Snake. Now let's move on to infobit. The natural environment or place where an animal or plant lives is its habitat. Now animals like polar bears that live in cold region have a very thick skin covered with fur. So अभी हमने पढ़ा था कि जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं उनकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है. सिमिलरली ये जो एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं इनकी भी स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है. एंड यहाँ पे बात हो रही है पोलर बेयर की जिसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और इनकी बॉडी पे फर होता है जो इन्हें जो है गर्मी देता है. Animals such as seals and penguins are well adapted to living in a freezing cold environment. So children, ये जो animals हैं जैसे कि seals हो गए या penguins हो गए, ये जो है बर्फीले इलाकों में भी बहुत अच्छे से अपने बॉडी को अडाप्ट कर पाते हैं. These animals have a very thick layer of fat under their skin called the blubber. और ये जो animals हैं इनके स्किन के नीचे एक बहुत ही मोटी लेयर होती है फैट की जिसे हम ब्लबर कहते हैं. The blubber protects them from cold. और ये जो blubber है क्या करता है, इन्हें cold से protect करता है. Now the next category is amphibians. So frogs, toads, newts and salamanders are amphibians. तो यहाँ पे ये जो animals के नेम दिए गए हैं इन्हें amphibians कहा जाता है. They can survive both on land and in water. ये क्या कर सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. They have moist skin through which they breathe
इन वाटर, और इनकी जो है स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से ये आराम से पानी में भी ब्रीद इन कर सकते हैं. ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और जब ये लैंड पे रहते हैं, जब ज़मीन पे रहते हैं, तो ये अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. Now let's move on to birds or aerial animals. So animals that can fly are known as aerial animals. So ऐसे animals जो उड़ सकते हैं उन्हें हम aerial animals कहते हैं. Birds are animals with feathers and wings or modified limbs. So ये जो birds हैं ये एक ऐसे animals हैं जिनके क्या होते हैं, feathers होते हैं, पंख होते हैं, wings होते हैं, and इनके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं. फेदर्स कीप देम वार्म ड्यूरिंग फ्लाइट, और ये जो इनके पंख हैं ये क्या करते हैं, इन्हें जो है गर्म रखते हैं जब ये उड़ रहे होते हैं. क्रो, पिजन, हेन एंड ईगल आर सम ऑफ द कॉमन बर्ड्स. तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नेम दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं. मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, और जो ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं. दे हैव लाइट हॉलो बोन्स टू हेल्प देम फ्लाई, और इनके जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ पाते हैं. बर्ड्स हैव अ स्पेशल बॉडी शेप नैरो इन द फ्रंट एंड बैक. सो ये जो बर्ड्स हैं इनकी जो बॉडी है वो नैरो शेप की होती है फ्रंट और बैक में, एंड ब्रॉड इन द मिडल, और बीच में ब्रॉड होती है. दिस बॉडी टाइप हेल्प्स देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई ईजिली. सो ये जो बॉडी टाइप है ये क्या करता है, इन्हें आसानी से हवा में उड़ने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये आराम से एयर को कट करके मूव कर लेते, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं. सच अ बॉडी शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और ऐसे ही बॉडी शेप को हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं. दे ले हार्ड शेल्ड एग्स, और ये क्या करते हैं, जो एग्स ले करते हैं उनके जो शेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं. नेक्स्ट कम्स aquatic animals. So animals that live in water are known as aquatic animals. ऐसे animals जो पानी में रहते हैं उन्हें aquatic animals कहा जाता है, जैसे कि such as fish, octopus and dolphin. So ये कुछ aquatic animals हैं. Whales and dolphins are exceptions as they have lungs to breathe. So यहाँ पे whales और dolphins के बारे में बताया गया है कि इन्हें जो है एक्सेप्शन में रखा गया है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लंग होता है ब्रीथ करने के लिए. जैसे हम ह्यूमंस के पास लंग होते हैं ना, वैसे इनके पास भी लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स विथ which they breathe, and fins or specialized limbs which help them to swim. So ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है, जिसकी वजह से ये जो है आराम से सांस ले पाते हैं, और फिन्स होता है जो क्या है होते हैं एक स्पेशल तरीके के लिम्स होते हैं जो इनको हेल्प करता है स्विम करने में. यानी यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर है शार्क, सैल्मन और गोल्ड फिश की. Now let's move on to the next topic, which is arboreal animals. So land animals that live mostly on trees are known as arboreal animals. So अभी हमने पढ़ा था land animals के बारे में, बट यहाँ पे कुछ ऐसे land animals हैं जो ज़्यादातर समय अपना कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, ज़्यादातर समय वहीं बिताते हैं. तो ऐसे animals को arboreal animals कहा जाता है, such as monkeys, squirrels, koala bears. So ये कुछ जो है आर्बोरियल एनिमल्स हैं, एंड लिजर्ड्स. सो ये जो है कुछ आर्बोरियल एनिमल्स हैं जो ज़्यादातर समय अपना पेड़ों पे बिताते हैं. दे हैव शार्प क्लॉज, इनके जो पंजे हैं, इनके जो नाखून हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं. विथ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और इनकी जो ग्रिप है वो बहुत तगड़ी होती है. टू हेल्प देम क्लाइंब अप एंड डाउन द ट्री और ब्रांचेस, जो क्या करते हैं इन्हें आसानी से पेड़ पे चढ़ने और उतरने में हेल्प करता है. The body of most arboreal animals is very strong with stout chest. So ये जितने भी animals हैं arboreal animals, इनकी जो body है वो काफ़ी ज़्यादा strong होती है और इनका जो chest है वो काफ़ी ज़्यादा stout होता है. Bones and limbs to provide them with enough support for climbing. इनके जो bones होते हैं, limbs होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा strong होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है इन्हें support मिल पाता है जब ये पेड़ों पे चढ़ते हैं.
They have strong ribs and hip girdles to help them move. और इनके जो रिब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. रिब्स आपको पता है हमारे फेफड़ों की जगह पे होते हैं, तो रिब्स जो उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. और जो हिप के जो पार्ट है, जो ग्रिडल्स हैं, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से मूव कर पाते हैं ट्रीज पे. नेक्स्ट कम्स मैमल्स. सो मैमल्स आर एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वंस विथ मिल्क. सो मैमल्स क्या हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को मिल्क से फीड करते हैं, मीन्स मिल्क का खाना देते हैं. दे हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी. और इनके बॉडी में, पूरी बॉडी में आपको हेयर मिलेंगे. दे हैव 4 लिम्स. इनके 4 लिम्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. और हम ह्यूमन बींग्स, हम भी मैमल्स हैं. आवर हैंड्स एंड लेग्स आर आवर लिम्स. सो हमारे जो हाथ है, हमारे जो पैर हैं, वो क्या है? हमारे लिम्स हैं. दे ऑल्सो हैव एक्सटर्नल ईयर्स. और इन मैमल्स के एक्सटर्नल ईयर है, मीन्स ईयर जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं. ऑल मैमल्स हैव अ टेल बट इन ह्यूमन बींग्स इट इज एब्सेंट. जितने भी मैमल्स हैं सबके पास पूंछ होती है, टेल होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये टेल नहीं होती है. Now let's move on to infobit. A whale is a mammal which lives in water. So whale क्या है? एक mammal है जो पानी में रहती है. So children, now quickly let's move on to checkpoint. Now children, let's move on to checkpoint. Here A exercises. Arrange the following animals in their correct groups. So here you can see different groups are given, and here the name of animals are given. You have to arrange them accordingly. So here in the category of terrestrial animals, giraffe and elephant we have to write. Aquatic animals, fish, octopus. Amphibian, frog, toads. Aerial, eagle, parrot. And arboreal, monkey and bear. Now let's move on to B part. Give one word for each of the following. So here the first one is animals that live on land, terrestrial animals. Next, animals that live in water, aquatic animals. Third one, animals that can live both on land and in water, amphibians. Fourth one, animals that can fly, aerial animals. And the fifth one, land animals that live on trees. So it is arboreal animals. So these you have to fill. Now let's move on to adaptation by food habits. तो अभी हमने पढ़ा बहुत सारे animals की categories के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं वो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कैसे अपने एनवायरनमेंट को अडाप्ट करते हैं. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. सो एनिमल्स जैसा भी खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. सो पहला आता है हर्बीवोर्स. सो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. सो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. एंड दीज एनिमल्स हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग क्राउंड, कटिंग टीथ फॉर बाइटिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. सो ये जो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. सो ऐसे एनिमल्स जो हैं इनके जो टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्राउन शेप के होते हैं, ताकि ईजिली जो है फूड को कट कर सके, बाइट कर सके. एंड इनके जो पीछे के जो दांत हैं वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैट और वो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, जिसकी मदद से ये आराम से जो भी खाना कट किया है उसे आसानी से चबा सकें. दिस इज बिकॉज प्लांट फूड नीड्स टू बी च्यूड अ लॉट as it is very rich in the substance called cellulose. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या जो प्लांट फूड है उसको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये जो फूड है इसमें जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज मौजूद होता है. सो इसलिए ऐसे खाने को बहुत ज़्यादा जो है च्यू करना पड़ता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर किसकी है, टीथ ऑफ काउ. तो काउ के टीथ की यहाँ पे पिक्चर ली गई है. स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स हैव razor sharp front teeth.
सो ये जो एनिमल्स हैं जैसे स्क्विरल हो गए, रैबिट्स हो गए या फिर रैट्स, इनके जो दांत हैं, इनके जो फ्रंट टीथ हैं वो कैसे होते हैं, रेजर शार्प, मीन्स बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, टू नॉ एंड बाइट नट्स, ताकि आसानी से चीज़ों को कट कर सके और नट्स को बाइट कर सके, बेरीज को खा सके एंड वुड को भी आसानी से कट कर सके। कलरफुल पैरट्स हैव शार्प कर्व्ड बीक्स टू ईट फ्रूट एंड क्रैक नट्स। सो ये जो कलरफुल पैरट्स हैं इनके भी जो बीक्स होते हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड होती है और शार्प होती है, जिसकी मदद से ये आसानी से फ्रूट्स को कट कर सकते हैं और नट्स को भी क्रैक कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्स कार्निवोर्स। So animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. So ऐसे animals जो दूसरे animals का flesh खाते हैं इन्हें हम carnivorous कहते हैं। Most carnivorous animals have very sharp teeth. और ज़्यादातर जो carnivorous animals हैं इनके जो दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा sharp होते हैं। For hunting and claws to tear out the flesh of its prey. So इनके जो दांत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली हंट कर सकते हैं। इनके जो पंजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने जो भी शिकार है उसके फ्लैश को टीयर कर सकते हैं और उसे खा सकते हैं। मोस्ट कार्निवोरस एनिमल्स हैव वेरी शार्प टीयरिंग टीथ फॉर हंटिंग एंड क्लॉज टू टीयर आउट द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे। सो ज़्यादातर जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके जो दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, जिससे वो आसानी से जो है हंट कर पाते हैं, और उनके जो क्लॉज है मीन्स जो पंजे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, जिससे वो जो है आसानी से जो भी फ्लैश है अपने प्रे का उसको टीयर कर पाते हैं। लायन, टाइगर, स्नेक एंड लिजर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोरस एनिमल्स के। Now let's move on to infobit. The long neck of the giraffe is a beautiful example of adaptation. So जो लंबी गर्दन है जिराफ की वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का। Apart from grass, giraffes are also able to eat the leaves of trees. तो ग्रास तो खाती हैं ये, इसके अलावा ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनके लीव्स को भी आसानी से खा पाते हैं। And reach the higher branches of trees due to their long neck. और जो ऊंचे ऊंचे जो ब्रांचेस हैं वहाँ तक भी अपनी लॉन्ग नेक की वजह से वो आसानी से पहुँच जाते हैं। Flesh eating birds such as eagles have sharp claws to catch their prey and special hooked beaks to tear off the flesh. तो अब यहाँ पे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की बात हो रही है, इनके भी जो है पंजे जो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जिससे ये आसान से अपने प्रे को पकड़ पाते हैं, और इनके जो बीक हैं वो हुक्ड शेप होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से जो भी फ्लैश है उसे टीयर कर पाते हैं। सो ये यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ लायन, टाइगर एंड स्नेक, एंड दीज आर द कार्निवोरस एनिमल्स। Now children, let's learn about scavengers. So some flesh eating animals feed on the flesh of dead and decaying organic matter. So कुछ जो है flesh eating animals वो क्या करते हैं, वो जो है जो भी dead decayed organic matter है उस पे वो जीवित रहते हैं, and they are called scavengers. इन्हें scavengers कहा जाता है। For example, vulture, hawk, hyena, etc. These are scavengers. Vultures and hyenas specialize in eating only dead animals. और ये जो vultures हैं या जो hyenas हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है dead animals को खाते हैं। Next comes parasites. So tiny animals that live on the blood of other animals, जिन्हें host भी कहा जाता है, are called parasites. So ये क्या है, ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के ब्लड पे जीते हैं, मीन्स दूसरे एनिमल का ब्लड पी के ये जीवित रहते हैं, और उस एनिमल को हम होस्ट कहते हैं। लाइस which are sometimes found in the hair on our head and fleas and ticks are wingless insects that live on birds
एंड मैमल्स। सो यहाँ पे बात हो रही है लाइस की, जिन्हें आप हिंदी में जुएं भी कहते हैं। सो ये जो लाइस है ये कहाँ हमारे बालों में पाए जाते हैं, जो हमारे हेड पे होता है। फ्लीज और टिक्स ये भी कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं, मीन्स इनके पंख तो नहीं होते हैं, जो बर्ड्स और मैमल्स के ऊपर जीते हैं, मीन्स इनका खून पी के ये जीते हैं। फ्लीज spread by jumping from one animal to another to suck their blood. So ये जो fleas हैं ये क्या करते हैं, एक एनिमल से दूसरे पे जंप करते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं। Some worms are also parasites. कुछ worms भी हैं, वो भी parasites हैं। Example, tapeworms are flat and long worms that live inside the intestines of animals. So आप सोच सकते हो कि ये जो एनिमल है ये हमारे अंदर रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। So क्या नाम है इसका, टेप वर्म्स। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं, लंबे होते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेप वर्म। Human beings can also get tapeworms if they eat food infected by these worms. So human beings में भी ये tapeworm आ सकते हैं अगर उन्होंने ऐसा खाना खा लिया जिसमें इन worms का infection हो। Next comes omnivorous. So animals that eat both plants and animals are known as omnivorous. So ऐसे animals जो plants भी खाते हैं, जो animals को भी खाते हैं, ऐसे animals को हम omnivorous कहते हैं। For example, bears, raccoons and birds like crows and woodpeckers. So ये जो है कुछ ऐसे animals हैं जिन्हें omnivorous कहा जाता है। Now children, let's move on to checkpoint. Here what you have to do, you have to sort the following animals based on their eating habits. इन animals को इनके eating habits के according हमें different categories में sort out करना है. So now let's do it. Now children, we have already categorized them. The first, herbivore, cow, sheep and horse are herbivorous animals. Lion, eagle and tiger are carnivorous animals. Bear, crow and man are omnivorous animals. Now let's learn about the next topic, which is adaptation by movement. So अभी हमने food के according adaptation देखा था, अब हम पढ़ेंगे कैसे जो animals अपने आप को adapt कर लेते हैं movement के according. So birds fly in search of food, water and to protect themselves. Birds क्या करती हैं, वो खाने की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं. They are therefore aerial in nature. इसलिए ये क्या है, aerial है nature में. Animals such as monkey, squirrel, snake and garden lizard have adapted themselves to move in trees. So ये जो animals हैं इन्होंने जो अपने आप को ऐसे अडाप्ट कर लिया है कि ये ट्रीज पे काफ़ी समय तक रह पाते हैं. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. इसलिए इन एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है. सम एनिमल्स लाइक द डियर एंड ज़ीब्रा रन ऑन हार्ड सॉइल. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डियर हो गए या फिर ज़ीब्रा, ये क्या करते हैं, हार्ड सॉइल पे रन करते हैं. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव डेवलप्ड हार्ड एंड्स ऑन देयर फीट कॉल्ड हूव्स. सो हज़ारों सालों से इन्होंने क्या किया, अपने जो पैर हैं उस पे जो उसके जो एंड्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं इस रनिंग की वजह से हार्ड सॉइल पे, और उस पार्ट को हम हूव्स कहते हैं. सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड लेपर्ड लर्न टू हाइड एंड देन रन फास्ट टू किल देयर प्रे. और कुछ एनिमल्स जैसे कि ये जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को पहले जो है उन्होंने छुपाना सीख लिया है और उसके बाद जब उनका जो शिकार उनके पास आता है तो वो तेज़ी से भाग के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने प्रे को मारने की कोशिश करते हैं. सो ये क्या है, कुछ स्किल्स हैं जो इन एनिमल्स ने सीख रखा है. दीज एनिमल्स डेवलप्ड पैडेड फीट विथ शार्प क्लॉज. और इसकी वजह से इनके जो फीट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैडेड बन चुके हैं और इनके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं. Animals such as bears, frogs,
snakes, etc. become inactive in very cold winter months. सो यहाँ पे जो एनिमल्स मेंशन हैं जैसे बियर्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, स्नेक हो गए, ये क्या करते हैं, जैसे ही विंटर मंथ शुरू होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं. सिंस द फूड इज ऑल्सो स्केर्स, क्योंकि यहाँ जो खाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है. सो दिस विंटर इनएक्टिविटी और स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. सो इस इनएक्टिविटी को हम जो है हाइबरनेशन कहते हैं या फिर विंटर स्लीप कहते हैं. सम एनिमल्स इन द डेजर्ट्स सेटल डाउन टू अ लॉन्ग स्लीप इन हॉट समर मंथ्स. और कुछ एनिमल्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो वो जो है वो भी जो है लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं टू सेव वाटर, ताकि उनके अंदर जो पानी है वो सेव हो सके. दिस स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन और समर स्लीप. और इस स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं या फिर समर स्लीप कहते हैं. तो दोनों ही टाइम हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडी हो, अलग अलग एनिमल्स उसके अकॉर्डिंग अपनी विंटर और समर स्लीप लेते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट. बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. बैट सिर्फ ऐसा इकलौता मैमल है जो उड़ सकता है. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू थिंकिंग स्किल. Sarthak feels that omnivorous are in a better position to survive than carnivorous or herbivorous. What do you think? तो सार्थक को ऐसा लगता है कि जो ओमनिवोरस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हो कि वो बेटर पोजीशन में है जीवित रहने के, अगर हम कंपेयर करें इन ओमनिवोरस को कार्निवोरस से या फिर हर्बिवोरस. तो आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं, दिस यू हैव टू टेल. Now here one hot question is also given. Most bears are dark in color except the polar bears. Why? Explain. So ज़्यादातर जो बेयर हैं वो कैसे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, लेकिन जो पोलर बेयर हैं वो वाइट कलर के होते हैं. ऐसा क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है. Another question is there. How do animals like snake adapt to living in a hot desert? सो हॉट डेजर्ट में ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेक, ये अपने आप को कैसे जीवित रख पाते हैं. सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्पेशल अडेप्टेशंस. एनिमल्स अडेप्ट टू स्टे सेफ इन देयर एनवायरनमेंट. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसमें जो है सेफ रहना सीख लेते हैं. They have to protect themselves from predators. उन्हें अपने आप को predators से बचाना होता है. Some animals move very fast to escape from their predators. कुछ animals जो है उन्हें बहुत तेजी से जो है चलना होता है अपने predators से बचने के लिए. These animals have very strong legs such as deer. और ये जो animals हैं इनके जो leg हैं वो काफ़ी ज़्यादा strong होते हैं, जैसे कि deer कह सकते हैं आप. Some animals like elephants have thick skin to protect themselves from heat. और कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, इनकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है जिसकी वजह से वो आसानी से हीट से बच जाते हैं. Camouflage and migration are special forms of adaptation which a few animals use to survive in their habitat. So ये दो जो चीज़ें हैं कैमोफ्लैग और माइग्रेशन, ये दो स्पेशल फॉर्म है अडेप्टेशन का, जिसकी वजह से जो कई सारे एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं. कैमोफ्लैग, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड और मर्ज विथ इट्स सराउंडिंग्स मेकिंग इट हार्ड टू बी सीन और स्पॉटेड. सो ये क्या है, कैमोफ्लैग क्या है, एक तरीके की एबिलिटी है जिसमें एनिमल्स अपने कलर को अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है ब्लेंड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं या फिर मर्ज कर लेते हैं, जिससे वो आसानी से पकड़े ना जाएं. द कैमिलियन, अ कॉमन गार्डन लिजर्ड, चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द ट्री और बुश ऑन विच इट सिट्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर है कैमिलियन की. ये क्या करता है, अपने आप को जिस भी चीज़ पे बैठा है उसके अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेता है, जिस भी बुश पे हो या किसी भी चीज़ पे जिस पे भी ये होता है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को ब्लेंड कर लेता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रेडेटर. प्रेडेटर इज एनिमल्स that live by killing and eating other animals. So predator
ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के जीवित रहते हैं। Many insects are eaten by birds. बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें कौन खा लेते हैं? बर्ड्स खा लेते हैं। Grasshoppers are green in color like the surrounding grass in which they are found. So grasshopper क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? घास में रहते हैं, वो भी ग्रीन कलर की होती है। Stick insects look like the sticks of the trees on which they sit. So अब यहाँ पे स्टिक इंसेक्ट्स भी होते हैं जो स्टिक्स की तरह दिखाई देते हैं, लकड़ियों की तरह दिखाई देते हैं जिस पे वो बैठते हैं। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर एनिमल्स टू स्पॉट देम, ताकि जो है दूसरे एनिमल्स उन्हें स्पॉट ना कर पाएं और उन्हें अपना शिकार ना बना पाएं। नेक्स्ट कम्स माइग्रेशन। सम एनिमल्स मूव इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। सो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब ठंडे इलाकों से वो मूव करते हैं गर्म इलाकों में, किस लिए? खाने की तलाश में। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन और इसे माइग्रेशन कहा जाता है। बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन एंड द आर्टिक टर्न माइग्रेट एवरी विंटर। तो यहाँ पे दो बर्ड्स के बारे में बताया गया है, पहला है साइबेरियन क्रेन और दूसरा है आर्टिक टर्न। ये दोनों क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं हर एक विंटर में, फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ओवर लैंड्स, और ये हजारों किलोमीटर्स को ट्रैवल करके आते हैं एंड सीज, लैंड और सी को ट्रैवल करते हैं एंड टू कम टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री तक आने के लिए कितने सारे मील्स जो है उड़ के आते हैं। दिस इज माइग्रेशन। नाउ लेट्स learn about animals in danger. So millions of years ago dinosaurs lived on our earth. तो हजारों साल पहले क्या होता था? ये जो डायनासोर्स थे ये हमारे अर्थ पे रहते थे, पृथ्वी पे रहते थे। They could not exist anymore since they could not adapt to changing climatic conditions. ये जो है अभी जो है नहीं है, क्योंकि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस थे उनको ये जो है सह नहीं पाए। डिस्पाइट अ लॉट ऑफ अडेप्टेशंस देयर आर सेवरल एनिमल्स हुज लाइव्स आर इन डेंजर। सो बहुत सारे अडेप्टेशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ अभी भी डेंजर में है, खतरे में है। दे आर क्लोज टू डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ, और ये जो है अर्थ से जल्दी ही गायब होने वाले हैं। सच एनिमल्स आर टू बी डेंजर्ड, और ऐसे एनिमल्स को हम कह सकते हैं कि ये डेंजर में हैं। एनिमल्स दैट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ आर कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट, और ऐसे एनिमल्स जो ऑलरेडी धरती से गायब हो चुके हैं उन्हें हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। वी पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल्स बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हम लोग ही इसके जो है मेन कारण हैं, इस एक्सटिंक्शन के मेन कारण हम लोग हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी वजह से ही, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये एनिमल्स डिसअपियर हो रहे हैं। वी कट डाउन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ प्लेसेस टू लिव और एक्सटिंक्ट। सो हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं ताकि हम अपने लिए घर बना सकें, हम अपने रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और इसके लिए हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। वी कट डाउन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ प्लेसेस टू लिव और टू फुलफिल आवर नीड्स। हम रहने के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं। सम एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन, सम एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स। कुछ एनिमल्स को उनको स्किन के लिए जो है मारा जाता है, कुछ एनिमल्स को उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। बोथ टाइगर्स एंड ब्लैक राइनोज आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, और दोनों ही, हम अगर बात करें टाइगर्स की या फिर ब्लैक राइनोज की, ये दोनों ही एनिमल्स एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुके हैं। दीज एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, और ये एनिमल्स आगे आने वाले सालों में गायब भी हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एनिमल्स सच एज द डोडो बर्ड एंड द sabre-toothed cat have already become extinct। तो यहाँ पे दो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, डोडो और sabre-toothed cat। ये दोनों ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं डायनासोर्स की तरह।
So this was the chapter, children. Now let's move on to key words. So here the first word is habitat, which means the home or natural environment in which an animal lives. Survive is to continue to live and exist. Camouflage is to hide by coloring or changing appearance to look like the surrounding. Now let's move on to summing up. So animals adapt themselves to suit their surroundings. Animals adapt themselves by the food they eat as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. Animals adapt themselves by movement. Some have hooves and some have claws. Animals living in trees are called arboreal animals. Animals have special adaptation for extreme hot and cold climates. Some animals migrate thousands of kilometers from cold climates to hot places in search of food. So these are important points that you should remember. Now let's move on to exercises. So children, here A exercise is darken the correct circle in given OMR sheet. So let's do it. Let's start with the first question, which is ability of an animal to change its color to blend or merge with its surroundings is hibernation, migration or camouflage. So it is camouflage. Second question, lice is an example of parasite, scavenger or omnivore. So here children, the correct answer is parasite. Now the third one is the respiratory organ of fish is fins, gills, lungs. So children, the correct answer is gills. Fourth one, as hibernation is to winter, so estivation is to spring, autumn or summer. So children, the correct answer is summer. Fifth one, the ability of an organism to adjust with the surroundings is called accommodation, adaptation or adaptation. So it is adaptation. Sixth, which of the following is not an animal of polar region? Polar region का कौन सा इनमें से animal नहीं है? Seal, penguin or snail. So children, the correct answer is snail. And seventh one. Now seventh one is, which of the following is a feature of herbivorous animal? Long hollow bones, long arms and tail, sharp cutting front teeth and strong grinding teeth. So children, the correct answer is sharp cutting front teeth and strong grinding teeth. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. So children, here the first question is, seals and penguins have a thick layer of fat called blubber. Yes, this is true. Second one, a crow eats only plants. This one is false. Third one, parasites feed on the flesh of dead animals. So children, this is false again. So children, here the correct answer is they feed on blood of animals. Now the fourth one is, scavengers feed on the flesh of dead animals. Yes, this is true. And the fifth one is, elephants can trick their enemies by camouflaging. This one is false again. Now let's move on to C part, which is fill in the blanks with the correct words. So here the first one is, most birds can fly because they have light bodies. Second one, animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Third one, vulture is a scavenger. Fourth one, the winter inactivity or sleep is called hibernation. Next one, fifth question, animals that live on land are called terrestrial animals. So you have to complete these like this.
So complete the exercise. Now children, let's move on to D exercise, which is give one word for each of the following. So here the first one is animals that live on a host and feed on its blood. These are called parasites. Second one, animals that live both on land and in water. Amphibians. Third one, animals that eat only plants are called herbivores. Fourth one, a long winter sleep taken by some animals is called hibernation. Fifth one is the way some animals disguise themselves to merge with their surroundings is called camouflaging. So children, like this you have to complete the rest of the answers that are given here. So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.